پیدائش کی کتاب جینیسس چیپٹر 3 اور اس کی ورس ہم دیکھیں گے 13 سے 12 سے بلکہ آدم نے کہا کہ جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا ہے اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا اور میں نے کھایا۔ اب یہ وہاں پر ان کی کلاس ہو رہی ہے، ان کی سرزنش ہو رہی ہے جب انہوں نے پھل کھا لیا آدم اور حوا نے، اور یہوہ پاک خدا ان سے پوچھ رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا ہے، تو وہاں پر جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ اور آدم نے کیا کہا ہے کہ یہ جو ایو ہے یا حوا ہے اس نے مجھے وہ پھل دیا ہے۔ تب یہوہ الوہیم نے عورت سے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ عورت نے کہا کہ سانپ نے، یہ پرانا جو سانپ ہے، یہ جو سانپ ہے ابلیس ہے، اس نے مجھے بہکایا تو میں نے کھایا۔ اور لکھا ہے کہ خداوند خدا نے سانپ سے کہا کہ اس لیے تو نے یہ کیا، تو سب چوپایوں اور دشتی جانوروں میں ملعون ٹھہرا۔ اب یہاں پر جو ہیبرو کا ورڈ ہے وہ ہے ہا اللہ، تو اللہ ہے، تو ملعون ہے، خداوند نے یہاں پر کہا ہیبرو میں۔ دیکھیے دوسرا کرنتھیوں اس کا 4 باب اس کی 4 آیت۔ یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہاں کے خدا نے اندھا کر دیا ہے۔ اس جہان کے خدا نے یعنی شیطان نے، اور اس جہان کا خدا کون ہے؟ یہ ابلیس ہے، یہ شیطان ہے، اور اس جہان کا خدا ابلیس ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ آپ نے قصہ گو کی گفتگو سن لی۔ یہ باسٹرڈ جو ہوتے ہیں، یہ سیمی سیمسن ہو گیا یا ٹی جی باسٹرڈ ہو گیا، یہ قصہ گو ہیں۔ قصہ گو سمجھتے آپ؟ یعنی کہ کہانیاں گھڑنے والے یہ لوگ ہیں۔ تو اب آپ نے اس کی گفتگو سن لی، اللہ رب العزت کو نعوذ باللہ ابلیس قرار دینے میں کتنا یہ یعنی کہ شدت کر رہا ہے۔ حالانکہ کوئی جو بھی قصہ گو اٹھتا ہے، چاہے وہ عیسائیوں میں چاہے کسی بھی قوم کا ہو، وہ کوئی اللہ رب العزت کو پتھر کا بت قرار دینے میں جتا ہوا ہے۔ کوئی کیا وہ جو یہ بکواس کر رہا وہ آپ نے سن لیا۔ تو میں سب سے پہلے آپ کے سامنے ایک قرآن پاک کی آیت پڑھ دیتا ہوں۔ سورہ نساء یعنی کہ 4 سورہ مبارکہ ہے اور اس کی آیت ہے 46۔ کچھ یہودی کلاموں کو ان کی جگہ سے پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور نہ مانا، کہتے ہیں ہم نے سنا اور نہ مانا، اور سنیے آپ سنائے نہ جائیں، اور رانا کہتے ہیں زبان نے پھیر کر اور دین میں تانا کے لیے۔ اگر وہ کہتے کہ ہم نے سنا اور مانا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بات سنے اور حضور ہم پر نظر فرمائے تو ان کے لیے بھلائی اور راستی زیادہ ہوتا، لیکن ان پر اللہ نے لعنت کی ان کے کفر کے سبب، تو یقین نہیں رکھتے مگر تھوڑا۔ اب اس آیت مبارکہ میں جو لفظ رانا ہے، اس میں جو یہودی ہیں، یہودی لغت میں رانا کا میننگ کوئی جو مطلب تھا وہ گالی تھا، کسی گالی کی طرف معروف یہی ہے کہ آئے ہمارے چرواہے۔ اور عربی لغت میں یا لغت قریش میں اس کا میننگ تھا کہ آپ دوبارہ فرما دیجئے یا سنا دیجئے۔ اب جیسے یہ قصہ گو بکواس کر رہا ہے، میں نے یہ آیت مبارکہ خصوصاً اس لیے پڑھی ہے کہ یہ قصہ گو کون سا، یہ ٹی جی باسٹرڈ اور سیمی سیمسن جیسے اور قصہ گو بکواس کرتے رہتے ہیں۔ کیا اس دور کے جو یہودی تھے یا عیسائی تھے وہ کم بے غیرت اور لعنتی تھے؟ اور دین اسلام کی آپ خاصیت دیکھیں کہ دین اسلام میں اگر کسی نے بے غیرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی حدیث مبارکہ موضوع یعنی کہ بنا کر وضع کر دی، تو دین اسلام نے اس کو بھی محفوظ رکھا ہے۔ یعنی کہ اس بے غیرتی کو جو اس نے یعنی کہ پتا ہے، صاف پتا ہے، بتاتے ہیں علماء کرام بھی، حدیث کی کتابوں میں بھی ہوتا ہے کہ یہ حدیث وضع کی ہوئی ہے، جھوٹی ہے، گھڑی ہوئی ہے، اس کو بھی محفوظ رکھا۔ اب مثال کے طور پہ ایک بہت ہر عیسائی جو ہے وہ تقریباً اس واقعہ کو جانتا ہے، مسلمان بھی جانتے ہیں کہ قصہ گرانیک ہے، قصہ گرانیک ہے، یعنی کہ اس میں نعوذ باللہ ایسا ذکر اس قصے میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھروں کو پوجا یا پتھروں کی
को सजदा किया। अब ऐसे किस्से भी दीन इस्लाम ने यानी कि मुसलमानों ने महफूज रखे हुए हैं। ये वाज़ेह है कि ये सब झूठे हैं मगर महफूज हैं, झूठे हैं महफूज हैं। अब ये जो बकवास कर रहा है कि हिब्रो में अल्लाह शैतान को कहा गया है, अल्लाह शैतान को कहा गया, ये बकवास कर रहा है। और मैंने पूरी तरह अपना चेक कर लिया, गूगल पर सर्च किया, मैंने शैतान को अपना इंग्लिश में लिखा, उसको हिब्रो में ट्रांसलेट किया, हिब्रो को बाद में उर्दू में या इंग्लिश में ट्रांसलेट किया तो उसका शैतान ही आया। अल्लाह, इसमें अल्लाह को मैंने उर्दू में लिखा और इसको हिब्रो में कन्वर्ट किया, हिब्रो से मैंने फिर उर्दू में किया। तो बात यह है कि ऐसे किस्से बयान करने का मसला क्या है, ऐसे किस्से बयान करना, और किस्से भी किस चीज से, किस्से बयान करना भी किस चीज से। अब ये जो किताबें ये सामने ला रहे हैं, ये किताब की कोई औकात है? अब ये बाइबल की सबसे पहली किताब है पैदाइश, यानी कि ये पहली जो 5 किताबें, इनको ये बकवास करते हैं कि ये तौरात है, ये कतई नहीं है। बहुत सारे मुसलमान उलमा इकराम ने मेरी मुखालफत की है कि जी आप बाइबल को गालियां देते हो, बाइबल के बारे में गलत बताते हो। और भाई आप मैं अक्सर कहता हूं कि आप मुसलमानों की, यानी कि मुसलमानों का जो रवैया है, उलमा इकराम ने या जितने भी हमारे मुसलमान जितने बुजुर्गान दीन हैं, उन्होंने इस बाइबल को एक्सेप्ट किया है कि ये बाइबल या ये यस्सु जो है ये है, इसको छोड़ दें, आप मुझे बाइबल से साबित कर दें कि ये तौरात, ज़बूर और अंजील है, तो फिर तो मैं मान भी लूं। अब जो बुजुर्गान दीन अगर किसी वजह से, या किसी वजह से मुराद यह है कि वो हुस्ने ज़न में इन बेगैरतों को, इन चूड़ों को ईसाई निसरानी समझते रहे, तो अब हो सकता है उन्होंने गलती की, हो सकता है मैं गलत हूं। आप मुझे ये बाइबल से साबित कर दो कि ये तौरात, ज़बूर और अंजील है, मैं मान लेता हूं। वरना खाम खा हमारे मुसलमान मुझ पर ये बात करते हैं। और मुसलमानों की ये खासियत देखें, ये मुसलमानों की तारीफ है। मैं एक न्यू मुस्लिम होते हुए ये बात कर रहा हूं, ये नहीं कि मुझे मुसलमानों ने रिश्ता नहीं दिया, मुझे मुसलमानों ने अभी तक रिश्ता नहीं दिया, और दूसरे ना अभी तक कोई ऐसा मुसलमानों ने मेरे साथ कोई ऐसा बहुत अच्छा काम किया हो जिसकी वजह से मैं कहूंगा जी मुसलमान बहुत अच्छे हैं। तो ऐसा कोई मामला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूं, मगर ये नहीं है कि मैं मुसलमानों का बहुत हामी हूं। मुझे पता है कि मुसलमानों में क्या क्या अच्छाइयां और क्या क्या बुराइयां। मुसलमानों की अच्छाई ये देख लें कि मैंने सैकड़ों बयानात ईसाइयत की कुत्ते वाली करते हुए किए, मगर मुसलमान आम अवाम और मुसलमान उलमा कराम मेरे बयानात की तायद नहीं करेंगे। वजह, क्योंकि वो मुनासिब ही नहीं समझते कि किसी मजहब और मिल्लत को गाली दी जाए। अब ये चूड़े-इज़्म की, ईसाइयत की औकात देख लो कि ये किस्सा गो सैमी सैमसन बास्टर्ड टाइप के लोग या टीजी बास्टर्ड टाइप के लोग ये उठते हैं और उठकर दीन इस्लाम पर किस्से बना बनाकर छोड़ते हैं यूट्यूब नेट पर। और ईसाई चूड़ा, चाहे वो कोई पास्टर है, बास्टर्ड है, चाहे कोई गटर खोलने वाला चूड़ा है, क्या करते हैं वो जी हमारा आलम ये, हमारा आलम ये। और मेरे सामने मैं अरसा दराज से तुम लोगों को इनवाइट कर रहा हूं, तुम लोगों को, कि मुझे अपने किसी चर्च में बुलाओ, तुम्हारी औकात तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी औकात क्या है। अब ये किताब पैदाइश से ये जो इसने बकवास की है, तो मैं इसकी औकात बता देता हूं आपके सामने। ये स्कैन चल रहा है। बाइबल मुकद्दस की पहली 5 किताबों के मजमुआ को तौरात कहते हैं। यहूदी और मसीही उलमा बाइबल की अक्सरियत ने इन 5 किताबों को हजरत मूसा की तसनीफ बताया। पहली किताब की पहली सत्र इब्रानी लफ्ज़ बरेशत से शुरू होती है। हजरत मूसा की तसनीफ बताया है, नहीं है, बताया है। अब उनके बताने पे क्या गारंटी है कि उन्होंने सही बताया, गलत बताया, जिसका मतलब है इब्तिदा में करना। अब इसको मजीद हम पढ़ लेते हैं। 150 कबल मसीह में जब बाइबल मुकद्दस का तर्जमा यूनानी ज़बान में हुआ, तो उस तर्जमा में इब्रानी लफ्ज़ रैशत को तकवीन या पैदाइश कायनात के माने में इस्तेमाल किया गया। इस माने के पेश नजर बाइबल मुकद्दस की अवलीन किताब को इस उर्दू तर्जमा में पैदाइश का नाम दिया गया। बाइबल मुकद्दस को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। पैदाइश से मलाकी तक की किताबों को पुराना अहदनामा और मत्ती की अंजील से मुकाशफा तक की किताबों को नया अहदनामा कहते हैं। पुराने और नया अहदनामा में मूसवी शरीयत की इस्तिलाह मुतअद्दिद बार इस्तेमाल हुई है। चूंकि तौरात से मूसवी शरीयत भी मुराद है, इसलिए हजरत मूसा
ही तौरात की पहली किताब पैदाइश के मुसन्नफ समझे गए हैं। इस किताब में आदम, हवा, नूह, इब्राहिम, सारा, इसहाक, रिबका, अब मैं ये नाम पढ़ रहा हूं, साथ में मैं इनकी औकात बताता जाता हूं कि ये पैदाइश में इनके साथ हुआ क्या। इस किताब में आदम जिसने सबसे पहला गुनाह किया, हवा जिसने सबसे पहला गुनाह किया, लानत है ऐसी किताब पर जो आदम और हवा को गुनाहगार बताए। नूह जो शराब पीकर बदमस्त हुआ, इब्राहिम जिसने अपनी बीवी को 2 बार बेचा, सारा जो 2 बार अपना बादशाहों के पास मुबाशरत के लिए गई। किसकी बात आप करोगे? किसका नाम जो इस किताब में लिखा है और उसके साथ ये कुछ इसने नहीं किया? ये आप पैदाइश की किताब है, छोटी सी है, पढ़ लो, मैं हवाला जात नहीं आज दे रहा। रिबका, याकूब और यूसुफ के हालात भी दर्ज हैं और हजरत मूसा की मौत का जिक्र भी पाया जाता है, जिसके मुतल्लिक यहूदी और मसीह उलमा का ख्याल है कि यह बयान हजरत मूसा के बाद के जमाना के किसी मुसन्नफ ने तहरीर किया है। यह है औकात इन किताबों की, और इस पर इन किताबों से किस्से करते हो, और जो किस्से हैं उन किस्सों से किस्से ढड़कर अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए बुरे बुरे अल्फाज इस्तेमाल करते हो। तुम्हारी औकात है? तुम्हें मैं कितने अरसे से चैलेंज कर रहा हूं, और ईसाइयत में आज तक बड़े बड़े उठते हैं जी, ये स्कॉलर है, ये फला है फला है, और कोई औकात है किसी की? मेरा मोबाइल, स्काइप एड्रेस, आज तक किसी ने मुझे चैलेंज नहीं किया, स्पेशल इनवाइट नहीं किया। मैंने कई बार कहा कि आपने किसी बड़े चर्च में कोई भी अपना डिबेटर, जितना बड़ा कोई नामी डिबेटर है जो यूट्यूब पर या वैसे किसी टीवी चैनल पर चल रहा है, मेरे सामने खड़ा कर दो चर्च में, और जो वो बकवास करता है अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, वहीं पर उसकी जो करूंगा वो सबके सामने होगी। और ये नहीं कि 10 बंदे इकट्ठे हों, हजारों की तादाद में मजमा हो, ऐसे सिचुएशन में कर लो मुनाजरा मुझसे। और मैंने आपको ये शुरू में बताया, ना तो मैं पैदाइशी मुसलमान और ना मुसलमानों से ये देख लें कि मैं जब तीसरी क्लास में था, यानी कि 3rd क्लास में था, तो उस वक्त जिस चर्च में, जिस हॉस्टल में मैं पढ़ता था, चर्च भी साथ था, हॉस्टल भी साथ था, स्कूल भी साथ था, होली क्रॉस स्कूल, तो उस चर्च पर हमला हुआ। अब उस वक्त से मुसलमानों के लिए मेरे दिल में क्या बचपन में ही नफरत बैठ गई। मुसलमानों ने हमला किया था तो उस वक्त से दिल में नफरत बैठ गई। अब कबूल इस्लाम तक मुझसे ज्यादा मुतशद्दद कौन होगा, जो इतना इल्म रखते हुए भी मुसलमानों के बारे में इतने बयानात करते हुए, अब वही बंदा ईसाइयत की मां बयान कर रहा। वजह यह है कि ईसाई वाकई बेगैरत हैं। बाइबल फौरन फौश किताबों का मजमूआ है। अब मजीद जो ये बकवास करता रहता है, ये मुकाशफा से, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्द यूहन्ना रसूल के साथ बात कर रहे हैं, जिनको मुकाशफा की किताब दी गई। इस पर तो बात करना मैं मुनासिब नहीं समझता। और मुकाशफा की औकात ये आपने इसके मुंह से सुना कि ये यूहन्ना रसूल का खाता है। लानत है ऐसी जबान पर जो ये इसने बकवास की। अब इसका मैं पढ़ देता हूं, यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा, पेश लफ्ज। मुकाशफा की किताब यूहन्ना आरिफ से मंसूब है, इसके बाप से मंसूब है। ये टीजी बेगैरत ने कहा है ना कि यूहन्ना रसूल से मंसूब है, यूहन्ना आरिफ से मंसूब है। उलमा का ख्याल है कि यूहन्ना पहली सदी ईस्वी की कलीसिया में एक मुमताज रहबर समझा जाता था। वो अपने मसीह ईमान की वजह से पतमुस नाम के खुशक जजीरा में जिला वतनी के दिन गुजार रहा था। वहीं उसने रोया में जो कुछ देखा वो उसने इस किताब में रमजो इस्तारा की जुबान में कलमबंद किया है। और ये किताब, अब ये बाकी आप खुद पढ़ लें। और इस किताब की औकात क्या है, जैसे नासिर डेमस की पेशन गोइयां है कि जब वो कोई वाकया हो जाता है उसके बाद उसके जो नासिर डेमस की पेशन गोइयों को हकीकत समझते हैं, उसके बाद वो उनको मिलाना शुरू कर देते हैं। इसी तरह ये मुकाशफा वाले हैं। और हमारे पाकिस्तान में मुकाशफा की औकात ये है कि जो मसीह आमलीन है, यानी कि जो जादूगर, चूड़े जादूगर है, वो मुकाशफा की किताब को इस्तेमाल करते हैं। और इस किताब का जिसके मुसन्निफ का कोई पता नहीं है और जिसके मुसन्निफ पर, और ये वहां से ये बातें चोदते हैं। कोई औकात, ये तुम्हारी बाइबल में से आज मैं साबित करता हूं। और मेरे लहजे से, मेरे अंदाज से महसूस ना करो। वजह क्या है कि हम मजलूम हैं। मजलूम इन लोगों ने बेगैरतियां कर करके बनाया है। बेगैरती मसीहत का दूसरा नाम है, बेगैरती। इन लोगों की बेगैरतियों की वजह से मैं इतना बुरा नहीं हूं, इतना सख्त नहीं हूं, मगर इन बेगैरतों की वजह से मुझे सख्ती करनी पड़ती है। अब ये तुम्हारी औकात, ये देख लो, तुम जिसको यहोवा खुदा बना रहे हो उसकी औकात देखो क्या है। इसको आप देखें, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं अहबार की किताब, इसका बाब 16 और इसकी आज 6 से। और हारून
खुद अपनी खता की कुर्बानी के लिए उस बछड़े को पेश करे ताकि वो उसके लिए और उसके घराने के लिए कुफारा हो, और फिर वो उन दोनों बकरों को लेकर खैमा इज्तिमा के मदखल पर खुदावंद के हुजूर में खड़ा करे और हारून उन दोनों बकरों पर कुरा डाले, एक कुरा खुदावंद के लिए और दूसरा कुरा अज़ाज़ील के लिए। और हारून उस बकरे को जिसका कुरा खुदावंद के नाम निकले लाकर उसे खता की कुर्बानी के लिए गुजरानी, लेकिन बजरिया कुरा अज़ाज़ील के लिए चुने जाने वाले बकरे को जिंदा ही खुदावंद के हुजूर में लाया जाए ताकि उसे बियाबान में अज़ाज़ील के लिए छोड़कर बतौर कुफारा इस्तेमाल किया जाए। लानत है ऐसे खुदा और ऐसे ये हवा पर, और जो शैतान के लिए कुर्बानी भेज रहा है। शर्म करो बेगैर, तो अपनी बाइबल पढ़कर फिर दीन इस्लाम पर बात करो। औकात तुम्हारी यह है कि ऐसे खुदा ऐसे यहोवा को मान रहे हो जिसकी औकात यह है कि वो शैतान के लिए अज़ाज़ील के लिए बियाबान में कुर्बानी भेज रहा है, और बात करते हो कि अल्लाह शैतान है। शर्म नहीं आती बात करते हो? और किसी बात से साबित कर सकते हो? आज तक तुम किससे कहानियां गढ़ते आ रहे हो। अभी मैं ये सिर्फ मेरे पास 2-4 दिन रहे, मैंने जो करनी है तुम्हारी 2-4 दिन में उर्दू में करनी है। इसके बाद जो इंग्लिश में जितना काम है इंशाल्लाह करूंगा इंग्लिश में, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मुसलमान मेरा इख्तिलाफ करें कोई परवाह नहीं है, ईसाई मुझे गोली मार दे कोई परवाह नहीं है। जितना काम मैंने कर लिया, इससे अब मैंने जितना काम कर लिया यही बहुत है। यूट्यूब पर, डेली मोशन पर, फेसबुक पर, इंशाल्लाह ये जो भी कभी भी कोई चूड़ा उठेगा, मेरा मुसलमान दोस्त मुसलमान भाई उसके मुंह पर मेरी वीडियो मारेगा ना, तो उसका मुंह बंद हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको दीन इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।